بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، سب سے بڑی عبادت انسان سے پیار کرنا، اپنا لہو بہا کر دنیا کی مانگ بھرنا، اپنی خوشی سمجھ کر غیروں کے دکھ اٹھانا ہے زندگی کا مقصد، اوروں کے کام آنا۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، گڈ مارننگ وتھ سبھی میں، اور آئی ایم ویری ہیپی ٹوڈے بیکاز میری زندگی کی سمجھ لیں کچھ چھوٹی چھوٹی خواہشات ہوتی ہیں نا کہ شاید میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں بہت بیزی ہوتی ہوں، میں ادھر نہیں جا سکتی ادھر نہیں، لیکن دل میں ایک خواہش ہمیشہ رہتی ہے کہ بھئی یار میں کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کروں جو بے لوس ہو، جہاں پر مجھے اپنا برانڈ نہ دکھانا ہو، جہاں مجھے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا نہ ہو، جہاں پر مجھے کچھ دکھاوا نہ ہو، جہاں میری روح کو سکون ملے، تو وہ صرف ایک میں کہوں گی ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ جا کر ان لوگوں کو دیکھ کے دوبارہ جی اٹھتے ہیں، اور ان میں سے ون اینڈ اونلی دارالسکون ہے۔ میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں، سسٹر کو اور سیویو صاحب کو، اور ہمارے ساتھ چمکتی دمکتی اور اسپارکل اور اسٹار وہ ہے برانڈ ایمبیسڈر دارالسکون کی کوکی۔ کوکی اتنا، یہ آپ کا نام پہلے بتائیں، ریئل کیا ہے؟ یہ پیار سے کوکی کہہ رہے ہیں یا آپ کا نام ریئل کیا ہے وہ بتائیے۔ اس کا نام آئی تھنک سسٹر روتھ نے جب آئی تھی، ظاہر ہے سسٹر روتھ نے اس کا کوکی رکھا، بیکاز کوکی مینز اے ویری سویٹ لٹل اچھا، تھنگ وہ ٹو ایٹ، وہ کچھ لوگ مجھے پوچھتے کہ آپ کا کیا نام ہے، میں نے بولا کوکی ہے نا، یہ کبھی کبھی آپ لوگ بسکٹ کھاتے ہیں، کبھی کوکی کھاتے ہیں نا، یعنی کہ میٹھی میٹھی سی ہو، یعنی کہ یہ جو ہے سویٹ سی ہے، اور لیکن میں تو سوچوں پھر ابھی مجھے اور زیادہ میٹھا کرنا ہو تو پھر میں کیا بولوں، اور زیادہ میٹھی، یعنی کہ ایڈ ٹو کوکی بہت ساری ٹو کوکی ہو گئی، جسٹ فار جوک ہے، لیکن بہت پیارا سا۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے پیار و محبت، اور انہوں نے سب سے دارالسکون میں سب سے پیار جو ہے وہ جمع کیا ہے، اور آج ان کی چہرے کی مسکراہٹ، ان کی دل کی جب یہ بات کہہ رہی ہوتی ہے، آپ نوٹ کیا کریں نان اسٹاپ یہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اچھا کوکیز، یو آر ریپرزینٹ آف دارالسکون از ان پاکستان اینڈ آل دا ورلڈ، میں یہ کہوں گی آپ گاہ بگاہ یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کو ریپرزینٹ، اپنے دارالسکون کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اور اب یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ دارالسکون میں آپ کو، کیونکہ ابھی ماشاءاللہ آپ کے یہاں پہ بلڈنگ وغیرہ بھی مزید کام جاری ہو ساری ہے، تو لوگ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس آ بھی رہے، تو آپ کیا کچھ کمی لگتی ہے کہ یہ ہمارے دارالسکون میں ابھی ہوگا؟ آپ کچھ بتانا چاہیں گے دارالسکون کے بارے میں؟ دارالسکون کے بارے میں جیسے انکل سیوین نے اور سسٹر کیتھرین نے بہت اچھا بتایا، ٹھیک ہے، میرے الفاظوں میں، in my words، دارالسکون 17 فروری 1969 میں شروع ہوئی۔ سسٹر غرٹروڈ جی جی، ایک سسٹر تھی جو اپنے ملک ہالینڈ چھوڑ کے بس انہی بچوں کا خدمت، جن کا کوئی پیار نہیں، جن کا کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ She came especially to serve these people۔ انہوں نے کیا سسٹر بنتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ میں یہاں پہ انہی بچوں کا خدمت کروں، اور ابھی 55 ایئرز ہونے والے دارالسکون کے اسی مہینے میں۔ I am proud to be a child of دارالسکون۔ واہ زبردست۔ انہوں نے سسٹر روتھ کے ساتھ مل کے دونوں نے غرض شروع کیا، سسٹر غرٹروڈ couldn't do it alone, so she wanted sisters to help her۔ واہ زبردست۔ سسٹر روتھ نے اور سسٹر غرٹروڈ نے اور بہت سارے سسٹروں نے مل کے سسٹر غرٹروڈ کو ہیلپ کیا۔ ہمارے دارالسکون کے اندر میں ہی، دارالسکون میں اتنے سارے برانچز، جیسے میں نے ریاست آباد کا بتایا، پھر ہمارا سینئر سٹیزنز ہوم ہے، اوکے، سینئر سٹیزنز اونلی، پھر ہمارے گرلز کا گھر ہے فار سنگل پیرنٹس۔ یہ میرے میسج ہے کہ لوگ تو آتے جاتے ملنے کے لیے، اپنے مدد کے لیے، وی وانٹ پیپل ٹو کم often and we want more people to come
so that Dawud Shakun can be recognized not only in Pakistan but in other parts of the world also. वाह जबरदस्त जबरदस्त कुकी जबरदस्त जैसे हम लोग हैं, we want them to recognize and we want others who don't know Dawud Shakun to come and to love and to give your help. माशाल्लाह जबरदस्त। अच्छा कुकीज हम ज़रा ज़रा सहबियों के सफर पास चलते हैं, फिर सिस्टर से भी बात करते हैं। इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे लोग डोनर्स होते हैं जो हेल्पिंग हैंड के लिए आपके साथ ज्वाइन होते हैं, तो मुझे बताएं कि कैसे लोग आपके पास आते हैं और कौन से लोग आपके पास आ सकते हैं। जी देखिए हम लोग वी टेक एवरीवन एंड whoever wants who cannot afford, Okay. और जो अफोर्ड कर भी सकते हैं हम उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। हमारी कोई फ़ीस नहीं है, वी आर ए चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, हमारी कोई फ़ीस नहीं है। हाँ जो डोनेशन देना चाहे वो अपनी हैसियत से जो भी दे सकता है। हम डोनेशन भी एक्सेप्ट करते हैं और हम ज़कात भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। तो हम शरिया कंप्लाइंट भी हैं, ताकि जो कि हमारे मुफ्ती साहब ऑन बोर्ड हैं तो वो फतवा जारी करते हैं रमज़ानों से पहले, फतवा जारी करके तो हम ज़कात कलेक्शन तो वही पैसे फिर हम इन बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। तो इसी तरह जिस तरह सिस्टर गर्टरूड और सिस्टर रूथ ने शुरू किया है, अभी भी सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो खिदमात करती हैं और इन्हीं बच्चों के ऊपर जो भी हम लगा सकते हैं, जितना भी पैसा है हम इनके ऊपर इनकी मेडिकल हॉस्पिटलाइजेशन, इनकी मेडिसिन्स, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, ये सब कुछ हम लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सर सब एक तो आपकी ब्रांच कश्मीर हमारी कश्मीर रोड पे यहाँ वहाँ पे मैं जा चुकी थी, मेरे जहन में वही जी कश्मीर रोड पे 325 के करीब यहाँ कैपेसिटी फुल है इस वक्त। छोटे बच्चे हैं, बच्चियाँ छोटी हैं। सीनियर सिटीजन्स ब्रांच में तकरीबन ये कहाँ पर है? ये एम ए जना रोड पे ठीक है। तकरीबन 120 सीनियर सिटीजन्स वहाँ पर मौजूद हैं जो ठीक कि है। नॉर्मल हैं। वहाँ पर जो है वो बच्चे जो पेरेंट्स को छोड़ते हैं अपने। अच्छा कुछ लोग मैं ये बहुत अच्छा आपने बार बार कहा कि वो तरह के नॉर्मल, old age ये home है। नॉर्मल जब कहते हैं ना तो मेरे जहन में क्लिक करता है जी। कि अच्छा कुछ लोग ऐसे जो अपने बच्चे आपके पास छोड़ जाते हैं जो सही भी होते हैं, वो लोग भी आप मतलब आप लोग देखिए custody में लेते हैं? हमारा ये है क्राइटेरिया कि वो डिसेबिलिटी कोई हो उनमें, अच्छा। तो वो क्राइटेरिया होता है। अच्छा दूसरा ये है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो बच्चे शायद अभी ज़माना ऐसा हो गया कि आजकल माइग्रेशन बहुत लोग इमिग्रेट कर रहे हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास इधर हमारे सीनियर सिटीजन्स होम में अपने पेरेंट्स को छोड़ने आते हैं। तो वो भी एक हिस्सा है जिसके केटर कर रहे हैं हम लोग। तो ये एक हिस्सा। और राशिदाबाद में चूँकि बड़े लड़के जो कि डिसेबिलिटी के साथ कोई फिज़िकली मेंटली चैलेंज लड़के, तो वहाँ भेजते हैं उनको। अच्छा। तो वहाँ तो टोटल इनके इससे कहते हैं ना, टोटल हमारे पास इस वक्त 700 के करीब रेजिडेंट्स कश्मीर रोड पे एक आपका इदारा है, एक आपका एमेजिना रोड और पे इदारा है और एक राशिदाबाद में और एक गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो वो भी एक ये कहाँ पर है? ये भी खुदादात कॉलोनी में ही है। अच्छा उस ये नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जिनके कोई करीब हो तो वो जी। इजीएस्ट वहाँ जी, पूछ जी, के जी, जा सकते हैं जी, दारुल जी, जी। सुकून में ना। अच्छा हेड ऑफिस में आए फिर हम लोग एडमिशन वहाँ पर इनको अच्छा प्रोवाइड ठीक करते है। हैं। बेसिकली आपका कश्मीर रोड पे जी, आप जी, वहाँ जी, पर खुद जी, अवेलेबल होते हैं जी। 24 आवर या कोई टाइमिंग? 24 आवर्स। लेकिन वैसे ऑफिस टाइमिंग्स है 6 बजे तक, 9 to 6। ठीक है ठीक है। वो लोग आप जो डोनेशन करना चाहे या कोई भी- डोनेशन के लिए हमारे एक बैंक अकाउंट है मीज़ान बैंक का, ठीक है। और ज़कात के लिए अलबरका। तो ज़ाहिर है अगर दो आपको dedicated- नंबर याद हो तो मैं आपसे थोड़ी देर में आपका नंबर भी कह जी, देती जी, हूँ, आप जी। अनाउंस कर दीजिएगा। और आप प्लीज़ घर में बैठे अगर आप जो आपके ज़कात या खैरात जो भी आप समझते हैं बेहतर कि आपने अपने ज़िंदगी जो जितनी आपने जो कारोबार किया उसमें कुछ हिस्सा जो आप अल्लाह के नाम का निकालते हैं और अपने बच्चों का सदका निकालते हैं, तो वो ज़रूर आप लोग ऐसे इदारों को, और ऑफ कोर्स मैं तो चाहूँगी दारुल सुकून को ज़रूर आप डोनेशन करें। अल्लाह पाक, जैसे मैंने एक छोटा सा अल्लाह की राह में कुछ एक काम किया, ब्रिज बनाई हूँ, तो आप भी एक हिस्सा मिला लेंगे तो अल्लाह पाक खैर करेगा। मैं ज़रा सिस्टर के पास चलती हूँ। सिस्टर ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग आपसे मिलते हैं, तो कभी कभी कब दुख हुआ कि कुछ किसी से मिलने के बाद आपको ज़रा सा एक होता है ना इंसानी फितरतन एहसास होता है कि बहुत दुखी हो गई हैं आप कि बच्चे को देखने के बाद, तो ये आपके साथ कब ट्रेजेडी हुई? कभी ज़िंदगी का कुछ वाक़या हमसे शेयर करें। बहुत से वाक़यात आगे पीछे होते रहते हैं, और मेरा तो 24 घंटे का काम इन लोगों जी, के जी। साथ है। अभी हमारे यहाँ एक बच्ची है, जी अभी 2 साल 3 माह की है, अच्छा और वो बच्ची बड़ी प्यारी सी है।
और भी बहुत से बच्चे हैं। एक बच्चा हिंदू है, उसको मीरपुर खास से सर को फ़ोन किया था कि आप हमें नहीं चाहिए, बच्चा ले जाए। क्लेफ्ट सर पैलेट ने- के साथ था, उस मतलब उसको अच्छा, क्या अच्छा, कहते हैं वो, उसके ये अभी वोट वो नहीं था बच्चा और वो तकरीबन साल से हमारे पास है। हमने इलाज करा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, अब उसके वालिदैन चाहते हैं कि उसको वापस किया जाए, अल्लाह। लेकिन हम लोग पेपर वर्क करवाते हैं, ऐसे आसानी से नहीं देते। अब वो बच्ची जो है, वो हमारे पास जो छोटी बच्ची है, वो हमें मामा कहती है। वो अभी 2 साल 3 माह की है और उसकी टांगों का भी ऑपरेशन हुआ है। और आप उसको देखेंगे, हर कोई इसको देखता है, कहते हैं आ गई जीवन, आ गई चेकिंग। परसों हमने एक वीडियो बनाई है, हालांकि वो सैवियो को जानती भी नहीं इतना। उसने कहा सैवियो भी बंद कबाब खा रहा था। और हमने वीडियो देखी, सैवियो को नजर ही नहीं आया वहाँ पर। कह रही बीना भी खा रही थी, फलाना भी खा रहा था, और मुझे कहते बाहर जाओ। अच्छा, मुझे बाहर भेज दिया, अच्छा, मामा ये किया। हमने उसकी आवाज़ रिकॉर्ड कर रिकॉर्ड कर, हमने जाके पूछा, हमने कहा आप लोग बनी, आप लोग कहते हमें तो पता भी नहीं। तो वो बच्ची सुबह आती है फिजियोथेरेपी करने, अब वो चलती है वॉकर के साथ, माशाल्लाह। और इतनी बातें करती है कि परसों हम उसको लेके गए लिटिल फ्रा के लिए। बिशप ने कहा शी परफेक्ट, मगर हम ऐसा नहीं दाखिल करेंगे। हाँ। हम मालूम करेंगे वाले डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, अगर वो मुनासिब समझते हैं हाँ, हाँ। तो हम इसको स्कूल में दाखिल करेंगे। शी टू क्लेवर, टू क्लेवर। बच्चे वाला बात है, मैं गई थी जीवन के एडमिशन कराने। अच्छा, ये भी असल में 2 दिन की थी ये छोटी बच्ची जिसका जिक्र हो रहा है। तो ये इसके जो नीज और हिप्स डिसजॉइंटिंग हो रहे थे, ओए होए ठीक है ना। होए होए। तो पेरेंट्स हमें छोड़ गए थे जब छोटी थी, एक दिन की थी, एक दिन की थी। तो ज़ाहिर दारुस्सूकून ने डोनर्स से मिल के कुछ अपने वसाइल और इस्तेमाल करके इसका ऑपरेशंस, तकरीबन 6 ऑपरेशंस इसके भी हो चुके हैं, नीज़ के और हिप्स के। अल्लाह ज़ाहिर ताला है- रहे हम जी। करे। सर हमारे साथ कॉलर है, इजाजत है सर, कॉल ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, याया कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो माशाल्लाह आपने वाकई इंसानियत की खिदमत करने वालों को बुला लिया, और मैं इन दोनों को सलाम पेश करना चाहूँगा। और सिस्टर रूथ ने जो पौधा लगाया था आज वो बड़ा दरख्त बन चुका है। इसमें और कोई शक क्रिश्चियन कम्युनिटी के अगर आप देखा जाए ना, वैसे भी बहुत बड़े पैमाने में कराची ये यानी क़याम पाकिस्तान से पहले भी इनके बड़े काम हैं, चाहे स्कूल के हवाले से चाहे हॉस्पिटल्स के हवाले से हो, तो बहुत इन्होंने काम किया हुआ है। और मेरे बहुत सारे दोस्त क्रिश्चियंस भी हैं और दूसरे लोग भी हैं। और इनकी सबसे बड़ी अच्छी बात ये सभी कि किसी तासुब के बगैर, किसी मजहबी मुनाफरत के बगैर ये सारे काम कर रहे इसमें होते कोई हैं। शक और यही लोग हैं, देखिए यही लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव किया हुआ इंसानियत को। यकीन करें अगर ऐसे इदारे पाकिस्तान में, कराची में भी ना हो ना, तो फिर और भी हालात हमारे खराब हो सकते हैं। क्योंकि ये कुशन देते हैं लोगों को, कंफर्ट देते हैं लोगों को, जो बेचारे लेस प्रिविलेज लोग होते हैं, जो दर्द के मारे होते हैं, जो जुल्म के मारे होते हैं, उनको अपनी जगह देते हैं। और अगर ये जगह ना देना, इसकी सबसे बड़ी समझने वाली बात है, अगर ये ना जगह, अगर ऐसे लोग, ऐसे इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग ना हो, तो और जुराइम में इजाफा हो जाए। ये तो यही लोग हैं जो इन्होंने बचा के रखा हुआ इस माशरे को। तो हमें इनका हर तरीका सपोर्ट करनी चाहिए, साथ देना चाहिए। और मेरी तो हमेशा यही कोशिश होती है, जाहिर है जितनी आपकी कैपेसिटी होती है, चाहे आप बोल के मदद करें या पैसों से मदद करें, आपकी करनी चाहिए। और मेरा इनसे एक सवाल है सिस्टर, आप हमारे कराची में जाहिर लोग बहुत डोनेशंस भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप मजीद क्या चाहती हैं? आप अगर जैसे कोई बंदा है आपको मोरल सपोर्ट कर रहा है, आपके लिए स्टैंड करना चाह रहा है, तो आप उससे क्या चाहती हैं? जैसे मैं हूँ, मेरी आदत, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, तो मैं आपके लिए क्या काम कर सकता हूँ? मैं वो बात नहीं करता कि आप मतलब मैं आपके लिए कुछ कर सकूं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो एक्चुअली जो एक आपके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम है कि जैसे कोई बेरोजगार हो जाता है या जिसकी जुल्म की मारी को खवातीन आती हैं जो काम नहीं कर पाती, बेचारी जो माशरे में निकल नहीं पाती, उनके लिए आप उनकी सेल्फ स्ट्रीम को रखने के लिए आप उनके क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या करते हैं? जी मैम, इस कैमरे को आप देखिए, ये इधर से बात कीजिए, ये सामने कैमरा, ये इनका बहुत जवाब शुक्रिया, दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। इनका सवाल का क्या जवाब देंगे आप? मैं समझी नहीं। अच्छा, ये याया ने आपसे बात की और आपको बहुत अप्रिशिएट किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग सारे मजहब से भी, वो यही कहा ना कि सारे मज़ाहिब से हट के आप लोग, जब लोग आपके पास आते हैं
تو وہ آپ یہ سوچ کے تو نہیں کرتے کہ یہ ہمارے مذہب سے ہے, آپ لوگ ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں؟ ہم لوگ دیکھیں جیسے سسٹر کا اس سوال کا جواب دیتا ہوں. جی جی ڈسکرمنیٹ بالکل ہم نہیں کرتے, اور جو بھی مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جہاں تک ان کا سوال تھا کہ ہم یہ ہماری مدد کس طرح کر سکتے ہیں, ہم چونکہ چارج بالکل نہیں کرتے. ہمارا منتھلی جو ہے نا بہت زیادہ ایک ڈونرز آتے ہیں, بہت بہت شکریہ, لیکن ہمیشہ ایک نیڈ رہتی ہے کہ اس کو فلفل کیسے کریں, کیونکہ ہر مہینے جو ہے نا وہ ایک بہت سندھ گورنمنٹ ہمیں چھوٹا سا ایک گرانٹ دیتی ہے. اس کے علاوہ ڈونیشنز کی ایک ہم اپیل ہمیشہ کرتے رہتے ہیں, کیونکہ ایک ڈیلی بیسس پہ, کیونکہ بچوں کی دیکھ بھال کرنا, کراچی جو ہیڈ آفس میں اس وقت ہمارے پاس 325 بچے, ان کا ڈیلی کا جو کھانا, صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اور ان کی جو میڈیسنز, اور اگر کوئی ایسا کیس آ جائے جہاں کہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ سارا خرچہ ہم لوگ برداشت کرتے ہیں. تو اس کے لیے ظاہر ہے ایک کنٹینیوس ڈونیشن کی ضرورت ہوتی ہے. ایک اور جو نیکسٹ سوال تھا ان کا کہ کس طرح جو فیمیلز, جو ہم نے ابھی آؤٹ ریچ ابھی شروع نہیں کیا, ہم جو لیتے ہیں صرف ڈسیبلڈ کوئی بھی بچہ آپ کے گھر میں ہو جو کہ آپ کیئر نہیں کر سکتے, ہم اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے. سو وی ایکسیپٹ دیم وتھ اوپن آرمز. تو جو بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہمارے پاس آ سکتا ہے. جی شکر ہے آپ جیسے ادارے ہیں اور آپ کا ادارہ ہے, ورنہ یقین کریں اگر جس کے گھر میں, جیسے انہوں نے کہا ایک دن کا بچہ ہے اور وہ بچی کو لے کر جو بھی جیون بچی کو لائے اس کے ایسے تھے, خدا نہ خواستہ یہ کچرے میں پھینک دیتے, یہ کچھ بھی ضرورت ہے امبیرسمنٹ فیل کریں. دیکھیں میں کہتی ہوں تو آپ کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے, خدا نے آپ کو چنا ہے, کچھ منتخب کیا ہے, کچھ تکلیف آپ کو اپنے, کہتے ہیں جب ہمیں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو خدا ہمارے قریب ہو جاتا ہے, ایسا ہے, اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ اس وقت خدا آپ کے قریب ہو جاتا ہے. تو آپ وہ جو, میں حیران ہوں اگر یہ ادارے نہیں ہوتے تو آپ لوگ تو اپنے بچوں کو کئی نالوں میں پھینک دیتے یا تو پھر پتہ نہیں کیا کر دیتے. آپ لوگوں کو ذرا بھی, میں حیران ہوں یہ کس طرح کے ماں باپ ہیں, کس طرح کے لوگ ہیں جن کے دل میں انسانیت ختم ہو گئی ہے, جیسے کفر لگ گیا ہو, کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ ایک انسان کو آپ کس طریقے سے اپنے سے جدا کر لیتے ہیں. اب جیسے اس بچے کا ایک ذرا سے ہونٹ کی وجہ سے آپ اس کو کہیں نہ کہیں, میں کہتی ہوں کتنے سارے ادارے ہیں جو کیئر, آج آپ کو دوبارہ اپنا بیٹا دوبارہ یاد آ رہا ہے, تو یہ تو ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے اس بچے کو ان کی ذرا سی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ کروا دی. تو آپ لوگوں کو کیا اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, مذہبی نالج نہیں ہے, ویسے نالج نہیں ہے جو آپ اتنا بڑا اقدام کرتے ہیں. لیٹس سی, میں چاہوں گی کہ ناظرین کو آپ اپنا نمبر بھی بتائیں تاکہ لوگ آپ کو جو ڈونیٹ کرنا چاہے وہ آپ سے رابطہ کریں. یہ کیمرہ ہے آپ کا سر, میسیج بھی دیں اور ساتھ میں اپنا اگر کوئی نمبر یاد ہے تو آپ اناؤنس بھی کریں. ایسا تو یاد نہیں لیکن شیئر کر دیں گے ڈیفینیٹلی. دارالسکون کے ویب سائٹ پہ اور دارالسکون کے فیس بک پیج پہ ہمارے جو زکوٰۃ اور ڈونیشن کا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے ٹھیک ہے, ہم لوگ اس طرح, آپ کو ویسے مجھے لگ رہا ہے یاد نہیں ہے. میں کچھ ایڈ کرنا جی 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 جی, یہ کیمرہ ہے آپ کا, بتائیں. سب نے ایک نیا, کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں, علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا, مردہ دل بھی کیا جیا کرتے ہیں. تو جو دارالسکون کا جو نام رکھا ہوا ہے سکون, دارالسکون یعنی سکون کا دروازہ, جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوتا ہے حقیقی معنوں میں ایک سکون ملتا ہے ہر ایک شخص. بالکل. ابھی میں بات کرنے میں تھوڑی سی میں ہچکچاتی ہوں کیونکہ ایک بچی نے مجھے مارا ہے. اچھا. اور میرے یہ تکلیف ہو گئی ہے. ٹھیک. 2 دفعہ میرا چشمہ توڑا ہے. اچھا. لیکن وہ جانتے نہیں ہیں, وہ نہیں جانتے وہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے بچوں کو ہمیں آگے بڑھ کر پیار کرنا ہے. ہم ان کو سکھاتے بھی ہیں, اسکول بھی ہے, سب کچھ سکھاتے ہیں. یہاں پر ہمارے یہاں مختلف قسم کے بچے گونگے ہیں, بہرے ہیں, ہم ان کو ان کے اسکولوں میں بھی راستے میں ہمارے سے سر کہتے ہیں فلاں بچے کا اسکول ہے. تو میں نے کہا اتنی دور آتے ہیں, ان کو گاڑیاں مہیا کرتے ہیں اور ان کے یونیفارم, ان کے ساتھ کھانا جو دینا ہوتا ہے سب کچھ ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں بچے جو ہیں وہ کیا کرنا, ابھی حال ہی میں ایک بچہ جو تھا وہ شاید اس کی باپ سے کوئی گڑبڑ ہو گئی اور وہ گھر چھوڑ کے آ گیا, تو پولیس نے پکڑ لیا. تو پولیس نے آ کے سر سے ریکویسٹ کی. اچھا. تو سر نے اس بچے کو, 15 سال کا بچہ تھا غالباً, سر نے اس کو رکھا
उसका हाथ के ऊपर रखेंगे। और उस बच्चे को समझाया कि बेटा आपने कहीं नहीं जाना। उसकी तहकीकात हुई, वकील आए, पुलिस आई, और सर ने मुझे भी बुलाया और खुद भी बैठे। उसके वालिदैन, बाप नहीं आया था, उनके चचा आए थे, उनकी वालदा आई थी, उनका आईडी कार्ड देखा गया, सब कुछ देखा गया। लेकिन जब पूरी तहकीकात हो चुकी, उसके बाद हमने इस बच्चे को उसके वालदा के हवाले किया। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे भी आते हैं। कल की बात है, कल मैं एक लड़की को मिली हूँ जो कि राष्ट्राबाद से आई है, और उसने मुझे मुझ पर पुलिस भी लेके आई थी। एक दफ़ा मैं चर्च में बैठी हुई थी तो पुलिस आ गई थी, तो पुलिस कहने लगी कि ये सिस्टर कैथरीन। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ये सिस्टर कैथरीन है। तो मैं डर गई पुलिस को देख कर, उनके हाथ में हथकड़ी देख के। तो इबादत का टाइम था, तो मैं फ़ौरन बाहर निकली, एक सिस्टर मेरे साथ थी। मैंने कहा क्या बात? कहने लगी फलां शख्स ने कहा कि आप लोग उनको हड्डियाँ देते हैं। तो मैंने कहा आप आके खाना देख लें, चेक करें खुद ही। और वो लड़की, जब उसका खावंद ने छोड़ दिया हुआ, उसका ज़हन ऐसा है। अब कल वो लड़की आई है राष्ट्राबाद से, और उसने मुझे पहचान दिया कि यही है। और जब मैं राष्ट्राबाद गई थी तो मैंने उस लड़की को पहचाना, तो सर ने मुझे कहा आप इसको पहचानती हैं? मैंने कहा हाँ मैं पहचानती हूँ, लेकिन मैंने मज़ीद वाज़ेह बात नहीं की थी कि कैसे मैं पहचानती हूँ। कल उसने मुझे पहचान दिया, उसने मेरा नाम भी याद रखा। तो पहले मैंने इग्नोर किया कि मेरा नाम ये नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये तो खुदा है जो अल्लाह मियाँ आता है हमारे पास इन बच्चों के ज़रिए, मुझे इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने उसको सब पे प्यार दिया, और वो बड़ी खुशी। मुझे कहती आप इधर ही है? मैंने कहा मैं इधर ही हूँ। कहती सिर्फ मैं आ गई हूँ तो आप मुझे इधर रख लें। मैंने कहा अच्छा। आज मैं उसको नहीं मिली सुबह। मैंने कहा कहीं फिर मुतालबा करती है, शायद वो चली गई आज। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है, देखिए ये कहने का मकसद है कि बहुत सारे लोग इनको तकलीफ भी देते हैं, लेकिन ये सब्र से काम लेते हैं और अपने खुदा को अपने करीब समझते हैं, और इनकी उसी सीक्वेंस में, उसी कंसंट्रेशन में इनकी खिदमत कंटिन्यू रखते हैं। उनके साथ अगेंस्ट में नहीं आते, उनसे बदला नहीं लेते और सब कुछ भुला देते हैं, जबकि वो इनको मारते भी हैं, उनको बुरा भी समझते हैं, जो भी है, लेकिन ये उस चीज़ों को दरगुजर करते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही बात सोचा कि इंसानियत की खिदमत करनी है। बहुत शुक्रिया कैथरीन मैम, आपका बहुत शुक्रिया। सेवियर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और कुकीज़ आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि लास्ट अपने नाज़रीन को, ये सामने कैमरा है, आप अपने दारुल सुकून के थ्रू कौन सा मैसेज देना चाहेंगी? कि वो मेरा यही एक मैसेज है आप सब के लिए। ये कैमरा मेरी जानिए, आप बताएं, ये सामने। हाँ यस, आप बताइए। ये मेरी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, जो भी ये प्रोग्राम देख रहा है या सुन रहा है। मेरी बस एक ही मैसेज है, एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूड दिस चिल्ड्रन इन योर सोसाइटी because they are your friends and they love you. As they love you, you must love them. जैसे ये आपको प्यार करते, वैसे आपने इनको प्यार करना है। वाह, से मिस आपको और आपकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया कहती हूँ कि आपने हमें आपके प्रोग्राम पे बुलाया, ताकि हम दारुल सुकून के बारे में बताएं। थैंक यू सो मच कुकीज, मोस्ट वेलकम। जब आप आना चाहें, उम्मीद है कि आप आए, एक विजिट इस बार। हाँ जरूर। और एक ईद आप लोगों के साथ, एक ईद दारुल सुकून के नाम, कुकी के नाम, पक्का। एक ईद हम पूरी सेलिब्रेट एक दिन आपके साथ स्पेंड करेंगे। और हाँ, ईद पर भी आऊंगी, लेकिन मुझे फिर गिफ्ट भी दे देना। अच्छा, कुकी देना, कुकी। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। हम यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ।